Hello and welcome to my channel Insight. In today's session, we will be studying Chapter 3, Identifying Patterns. And in this chapter, we'll be picking up the first topic, that is how to identify partiality, preference, and prejudice. Children, when we are studying this topic, we say, normally people say that children, we tend to have a partial behavior or attitude towards things, whether we make ourselves believe this or not. Honesty, it's on us. When we talk about this behavior technically, we call it partiality, preference, and prejudice towards a set of data, and then it becomes bias. Referring to your book, if I start reading from your book, referring to your book, we say we often come across situations where if we have a special fondness, towards a particular thing, we tend to be slightly partial towards it. That means fondness means our liking. जब हमें लगता है कि हमें कोई चीज बहुत पसंद आ रही है या कोई चीज हमें हमें प्रायोरिटी है, लेट्स से कलर, if we write like black color, then it is like our preference कि जब भी हम market जाएंगे तो we'll buy something in black because that makes me look smarter. This is my choice, this is my fondness over color. So if someone asks me to prioritize the color from top to bottom, I might put black on the top because this is my thought, this is my preference, and this is my belief. And in other words, I can say I'm biased towards color black. This in majority cases, may affect the outcome of what you can say. It can deviate the outcome in favor of certain things. When I say about things, normally in data science, when we say data bias is a deviation from expected outcome in data, an error in the data, then why it is said so? How can our liking or thought towards anything influence data? कैसा सही में है जब हम कहते हैं कि हमारी जो सोच है, हमारी जो प्रेफरेंस है, वो डेटा को डेविएट कर देती है पॉसिबल आउटकम आने से? तो ऐसे कैसे हो सकता है? लेट्स इमेजिन वी हैव अ शॉपकीपर who has a liking for a certain color. जैसे मैंने अपना ब्लैक बताया, ऐसे ही हो सकता है किसी और की प्रेफरेंस हो। एक शॉपकीपर है जिसकी प्रेफरेंस है एक सर्टेन कलर। अब वो कलर जब भी वो मार्केट से सामान लेकर आता है, ऑल विमेंस मटेरियल, तो उसको ये लगता है, क्योंकि उसकी लेडीज शॉप है, उसको ये लगता है कि मुझे ये कलर पसंद है तो लोगों को भी ये कलर पसंद आएगा। इन अ थॉट of liking of this color, he is purchasing lot of material related to that color in a thought कि लोगों को वो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है, इसमें जो भी पहनता है ये फंक्शंस के लिए भी अच्छा लगता है, इसमें ग्रेसफुल लगता है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसके दिमाग में आती है। तो क्या हम कह सकते हैं, हाउ कैन आवर लाइकिंग और थॉट टुवर्ड्स एनीथिंग इन्फ्लुएंस डेटा? इज बायस really deviating my data from reality? Children, when we talk about any of the artificial intelligence system, we have two things to be considered. That is, one is what we actually predict and what is the reality. जब भी हम AI systems के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं, एक जो रियलिटी है और एक जो हमने प्रिडिक्ट किया। जो भी चीज हमारी प्रिडिक्ट हो रही है वो एक सर्टेन सेट ऑफ डेटा पे हो रही है, जो कि एक रियलिस्टिक अप्रोच भी हो सकती है और उसमें हमारी प्रेफरेंस भी हो सकती है। तो इन केस इफ यू हैव प्रेफरेंस टू समथिंग दैट मे डेविएट द रिजल्ट, अगर मेरी लाइकिंग किसी चीज पे है, जैसे मैंने आपको कलर का एग्जांपल दिया, बट यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वीडियोस हो गई हैं, जैसे बुक्स हो गई हैं, जैसे वेबसाइट्स हो गई हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, प्लेटफॉर्म पे कोई पर्टिकुलर ब्रांड हो गया, या कोई कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक की जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है, तो पॉसिबली मेरा जो प्रिडिक्शन है वो उसी पे रिलेट करेगा, जो हो सकता है एक्चुअली रियलिटी से उसको डेविएट कर दे। रियलिटी में इफ माय चॉइस, माय प्रेफरेंस इज ऑफ सैमसंग, लेकिन रियलिटी में जो परफॉर्मेंस आ रही है वो एलजी की अच्छी आ रही है, तो क्या ये चीजें मैच हो रही है? क्या मेरा रिजल्ट जो है वो डेविएट हो गया है? इस तरह की सिचुएशन जहां पर प्रिडिक्शन ऑफ सैमसंग भी गलत नहीं है, लेकिन रियलिटी इज that LG is performing much more better. But my biasness or my liking towards Samsung gave me this kind of biased environment where my preference overrided the actual reality. Coming to the book again,
The proper definition, what is given in your book, is the partiality, preference, and prejudice towards a set of data is called a bias. तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? प्रेफरेंस हमारी चॉइस में जब हम कहते हैं कि ये चीज मुझे पसंद है या इन गिवन सेट में मैं ये प्रेफर करूंगी, लाइक इन अ मेन्यू, इफ यू गो टू अ रेस्टोरेंट और वहां पर आप मेन्यू में कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो मेन्यू में आपका प्रेफरेंस होता है, लाइक यू लाइक छोले भटूरे और यू लाइक जंक फूड, तो आप हमेशा उसको प्रेफर करेंगे. एनीथिंग इन जंक फूड इज योर liking, that is your preference. When you talk about partiality, think about participation in a competition, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अब डांस कंपटीशन में जो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर मुझे उस कंपटीशन को विन करना है तो मेरी अप्रोच तो ये होनी चाहिए, जो बेस्ट डांसर्स हैं मैं उनको लूँ, उनका कोई ट्रायल लूँ जिसके बेसिस पे मैं उनको सिलेक्ट करूँ. कोई तो मेरा क्राइटेरिया होना चाहिए. उसके बजाय मैं रैंडमली स्टूडेंट सिलेक्ट करती हूँ कि ये बच्चा मुझे इस क्लास में अच्छा लगता है, ये बच्चा मुझे यहाँ से अच्छा लगता है, उन सब बच्चों को मैं कलेक्ट कर लूँ. आई एम टेकिंग डांसिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि वो भी मेरी चॉइस है, वो भी मेरी अपनी एक तरह की प्रेफरेंस है. तो लेकिन इसके अलावा मेरे को वो बच्चा अच्छा लगता है, मैं उसको लूंगी, उसको लूंगी. अब क्या होता है कि आपका एक डांस कॉम्पिटिशन होता है, उस डांस कॉम्पिटिशन में आप परफॉर्म करते हो और आप जो है लूज कर जाते हो. अब वो जो लूज आपने किया, वो क्यों किया? दैट इज वन क्वेश्चन. बट क्या आपका दिमाग उस पे है, क्या आपकी सोच उस पे है कि आपने लूज किया है? वो सोच है या नहीं, वो कैसे पता लगेगा? आपने बच्चों को ये कहा कि ठीक है, हम इस बार नहीं जीते बट हम नेक्स्ट टाइम जरूर जीतेंगे. बट वी रियली वर्कड अपॉन द कॉज कि मेरी जो पार्शियलिटी वाला बिहेवियर था, जो मेरी प्रेफरेंस थी, जो मेरी एक बिलीफ थी, उसकी वजह से, मेरी बायसनेस की वजह से मैंने करेक्ट स्टूडेंट्स को नहीं पिक किया जो कि एक्चुअल परफॉर्मर थे, और इसी की वजह से मैं कंपटीशन लूज कर गई. So this is my biasness which can lead to deviation of the result. I can see failure, but my error of selection of students gets unnoticed. So इस तरह की जो आपकी situations होती हैं, उनको हम bias कहते हैं. Now, when we come across this thing, I may read something from the book for you. Bias is deviation from, please underline in your book also when you see the video. Bias is a deviation from unexpected outcome in the data. We also say that bias as an error in the data. Now, error is not something कि आपने कोई प्रोग्राम चलाया और वो abruptly बंद हो गया. आप उसको error नहीं यहाँ पर कह रहे हैं. आप एरर उस तरीके से इसको बोल रहे हैं कि कोई एक गिवन सिचुएशन में आपने कुछ सैम्पलिंग की है, कुछ एस्टिमेशंस किए हैं, और वो एस्टिमेशंस जो है वो करेक्टली आपके सामने रिजल्ट नहीं दे रहे हैं. एक्सपेक्टेड आउटकम अगर किसी भी मशीन आपको नहीं देती है तो वो उसको गलत ही ठहराया जाएगा. सैम्पलिंग और एस्टिमेशन का सीधा सीधा मतलब एरर के साथ क्या है? जब हम कोई भी पॉपुलेटेड डेटा हम कलेक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास जो भी डेटा जिस पे हम काम करना चाहते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन फॉर अस. उस पॉपुलेटेड डेटा में से हमने कुछ सैंपल्स निकाले और उन सैंपल्स के ऊपर हमने मॉडल को ट्रेन किया. हमने सोचा कि इस तरह से मॉडल अगर इस डेटा पे काम करेगा तो वो फाइनली जो है रियलिस्टिक वे में कुछ बेटर प्रिडिक्ट कर पाएगा. और जो हमारी एस्टिमेशन इसमें रही है कि हमारा एक सोच था, सैम्पलिंग मीन्स कि हमने कुछ डेटा निकाल लिया, और एस्टिमेशन हमारा ये रहा कि इसमें से कुछ हमें इंसाइट्स मिलेंगे, कुछ आइडिया मिलेगा कि डेटा किस बारे में है. तो इस तरह की चीजें जब गलत होती हैं तो हम उसको एरर के नाम से रेफर करते हैं. एरर हो सकता है इनडिस्टिंक्टो, मींस अननोटिस्ड रह जाए, कुछ प्रॉब्लम रही है डेटा में, कुछ आपसे इग्नोर हो गया, उस तरह से भी हम इसको एरर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो एरर का नाउ यहाँ पर होने का मतलब ये नहीं है कि कोई एप्लीकेशन आपकी बंद हो गई है या कोई हॉल्ट्स हो गए हैं. नो, इट इज नॉट लाइक दिस. इट इज लाइक व्हेन यू आर नॉट गेटिंग डिजायर्ड आउटपुट, तो पॉसिबली यहाँ पर कुछ तो फॉल्ट हुई है, जिसको हम एरर के फॉर्म में कहते हैं कि इसका मतलब कि हमने कुछ ऐसा है जिसको नोटिस नहीं किया. थिंक अबाउट हैविंग मेडिकल रिपोर्ट्स. अगर मेडिकल रिपोर्ट्स की आप बात करते हैं तो मेडिकल रिपोर्ट में अगर किसी की रिपोर्ट का डायग्नोसिस गलत हो जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? उसको एरर ही कहेंगे ना. क्योंकि एक्सपेक्टेड क्या था कि रिपोर्ट जब भी स्कैन हो रही है तो स्कैनिंग के बाद जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स है वो लिस्ट डाउन होनी चाहिए. लेकिन लेट्स से आउट ऑफ 5 प्रॉब्लम 4 ही लिस्ट हुई, 1 नहीं लिस्ट हुई, या 2 ही लिस्ट हुई, 3 नहीं लिस्ट हुई. तो इसके पीछे अप्रोच क्या है, क्यों ऐसा हुआ?
क्या इसके पीछे कोई बिलीफ है, कोई थॉट प्रोसेस है जो हम इग्नोर कर गए हैं, या कोई वैल्यू मैनिपुलेट हो गई है? तो इस तरह की चीज को हम यहाँ पर एरर के फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। बायस बेसिकली अकर्स बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन, के हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया है, कुछ जो पॉपुलेटेड डेटा यानी कि जो टोटल डेटा हमने कलेक्ट किया उसमें से कुछ सैंपल हमने निकाला है, और उस डेटा को जो है हम यूज कर रहे हैं इनसाइट्स निकालने के लिए। दिस इज सैम्पलिंग एंड estimation. If we could know everything about all the entities in our data and would store information on of all probable entities, our data would never have any bias. Now, when we talk about data, data is stored in a known format. Can we say this? Data is stored in a known format. What is known format? जहाँ पर labels पहले से designed है, defined है, given situation आपने various case studies पहले भी की हैं, तो इन case studies में जैसे sleeping hours को लेकर हो गया या allergies को लेकर हो गया, तो given एक allergy की study करने के लिए आपने जो भी variables consider किए हैं, तो उसमें ही data आपने collect किया है, तो format already familiar है आपको. Data is stored in a known format and can be according to the preference. Think about you are designing a survey form. आपने एक सर्वे फॉर्म बनाया लोगों की एलर्जीज के बारे में जानने के लिए. अब ये जो फॉर्म आपने डिजाइन किया है, इसके अंदर जो क्वेश्चन, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चंस जो आप डाल रहे हो, आपका आइडिया क्या है? डेटा कलेक्शन. इस डेटा कलेक्शन में आप क्या करना चाहते हो कि ठीक है, एलर्जीज नाम चाहिए, जेंडर चाहिए, एलर्जी की हिस्ट्री चाहिए, और पॉसिबल आपके घर में पेट्स हैं या नहीं है, तो वेरियस कैटेगरीज में आप डेटा ले रहे हो. तो आपकी एक बिलीफ हो गई है, आपने सोचा कि डॉग से कैसे किसी को एलर्जी हो सकती है. ओके, डॉग्स में भी वेरियस ब्रीड है, इस ब्रीड से कैसे एलर्जी हो सकती है, तो आपने उससे डेटा को उस ढंग से, या तो उसका क्वेश्चन नहीं पूछा, या उसकी वैल्यू में वो ऑप्शन नहीं दिया, अज्यूमिंग दैट कि अगर डेटा इस टाइप का है तो उसको एलर्जी नहीं है. तो ये आपका एक बिलीफ है जो आपने डेटा पे एरर की फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर दिया है. सो डेटा साइंस क्या कहती है? इज कंडक्टेड, डेटा साइंस इज कंडक्टेड ऑन डेटा विच हैज बीन कलेक्टेड बाय स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन इन अ लार्जर क्वांटिटी. और इस डेटा में अगर हम बहुत सारे फैक्टर्स को अज्यूम करके चलते हैं, बहुत सारी चीजों को नोट करते हैं, लेकिन कोई भी एक वैल्यू के लिए हम एक assumption ले लेते हैं कि ये ऐसा होगा. आप देखिए, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स में अगर मैं आपके लेट्स से 10 ग्रुप्स बना देती हूँ 5 स्टूडेंट्स के, तो एक ही प्रॉब्लम के लिए आप जो सर्वे फॉर्म बनाएंगे, आप लोग के सर्वे फॉर्म में वेरिएशंस आ जाएंगे. अब जब वेरिएशंस आएंगे तो हो सकता है आप जब ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं तो एक बच्चा बोलेगा कि नहीं ये होना चाहिए, नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो यही होगा. तो व्हाट यू आर डूइंग देयर, you are basically putting your thought process in the collection of the data जो आप statistically पूछ रहे हो. This is what is explained in this paragraph, that data science is often not conducted in carefully controlled conditions. क्योंकि आपका जो डेटा है वो आप अगर सर्वे के थ्रू ले रहे हो तो हम उसे कंट्रोल फॉर्म में कहते हैं, बट देन योर स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन आर द वे how we are looking towards data, and it is mostly done in the found data, that is the data collected for various purpose other than modeling. ये सारी जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपके बायस को रिफ्लेक्ट करते हैं. बहुत तरह के आप ऐसे भी देखेंगे, जैसे वोटिंग्स होती हैं, नॉर्मली हम लोग ट्विटर से डेटा कलेक्ट करते हैं, वेरियस प्लेटफॉर्म हो गए, कि अगर हमें वोटिंग के बारे में जानना है कि कौन सी जो रूलिंग पार्टी है वो कौन सी होनी चाहिए, या प्रोबेबल हमें प्रिडिक्ट करना है कि कौन सी पार्टी जो है आगे रूलिंग पार्टी बनेगी, तो हम किस बेसिस पे करेंगे. आप देखते हैं न्यूज चैनल्स जो हैं वो प्री एनालिसिस करते हैं इस चीज का, और आपको एक फोकास दिखाते हैं कि प्रोबेबल इस जगह पे इस स्टेट में ये जो है बीजेपी इतने वोट से अ, जीत सकती है, या कांग्रेस इतने वोट से जीत सकती है. तो जब हम ऐसी कोई बात करते हैं तो इस बात करने के लिए हम डेटा कहाँ से ला रहे हैं? तो मे बी वी आर टॉकिंग टू 15-20 पीपल और 100 पीपल इन रिकॉर्डिंग द डेटा. नाउ इन अ गिवन पॉपुलेटेड एरिया there might be a population of 1000 or 20,000 people, but with how many people you are interacting? 100 से, 200 से, 300 से, what about the remaining one? 19,000 people. You are not interacting with 19,000 people. So sample of data what you are having is very limited. But we are talking about 140 billion of people living in India. What about that?
अगर इसी तरह से एस्टिमेशन डेटा छोटा होगा तो इसका एनालिसिस बायस्ड होगा, ऐसा हमारा मानना है। Next question that may arise in your mind is, why does bias really matter? Good question. क्यों मैटर करता है, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं, क्या रोल क्या है इसका हमारी स्टडी में? वेल द आंसर इज दैट जो हमारे प्रिडिक्टिव मॉडल्स होते हैं, जो हमारे प्रिडिक्टिव मॉडल्स होते हैं, वो जनरली कंसिडर करते हैं द डेटा दैट इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग। ये आपको पहले 9th में मैंने बताया था कि आपका जो डेटा सेट होता है, जितनी भी पॉपुलेटेड डेटा है, जितनी भी पॉपुलेशन है आपकी डेटा की, वो सारा डेटा जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा। अब जो ट्रेनिंग डेटा होता है उस पे जो आपका मॉडल है उसको सिखाया जाता है। द मॉडल लर्न्स लाइक अ स्मॉल चाइल्ड इज गिवन एक्सपोजर टू set of pictures of, let's say, fruit apple. Apple is this, apple looks like this, apple is this. But want when the child is expected to really identify apple, let's say उसको fruit market लेकर जाएगा और उससे पूछा apple कौन सा है, तो उसने क्या पॉसिबल आंसर दिया इस पे? वो आइडेंटिफाई कर भी सकता है और वो आइडेंटिफाई नहीं भी कर सकता है। ना करने के पीछे रीजन क्या होगा? The child has been always exposed to the data by pictures, but not in some real object kind of thing. All he has seen is picture. अब देखिए एप्पल है और पीच है, अगर आउटर टेक्सचर थोड़ा फार से देखा जाए या पिक्टोरियली फॉर्म में देखा जाए, लेट्स से पोर्शन ऑफ एप्पल, देन वो बहुत हद तक एक जैसे लगते हैं। देन हाउ विल यू प्रिडिक्ट दिस? तो जो प्रेडिक्टिव मॉडल्स होते हैं इसके लिए कहा गया है कि ओनली द डेटा इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। इन फैक्ट दे नो रियलिटी अदर देन द डेटा दैट हैज बीन फेड इन द सिस्टम। जिस डेटा से उनको ट्रेन किया गया है वो सिर्फ उसके बारे में जानते हैं, उसके बियॉन्ड उसके बारे में उनको नहीं पता। Naturally, if the data is fed into the system is biased, model accuracy and fidelity are also compromised. अब हमारे पास बहुत सारी गिवन सिचुएशंस हैं। सिचुएशंस जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, लेट मी गो फॉर द नोट्स, देन वी विल एक्सप्लेन दिस। एक मिनट, लेट मी गो फॉर नोट्स। यस, राइट, सी द सिचुएशन हियर। अब आपको जो मॉडल है, मैंने कहा 100% ऑफ द डेटा, राइट, 100% of the data is divided into two segments. One is training and one is testing data. So when we are basically testing the model, we are testing the accuracy and the working of model, which happens in the evaluation stage. Evaluation stage पे basically क्या किया जाता है, मॉडल की एफिशिएंसी को टेस्ट किया जाता है। तो मॉडल की एक्यूरेसी 100% कब होगी या नियर टू 100%, जब जो प्रिडिक्शन वो कर रहा है, जो मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है वो क्लोजली हो रियलिटी के, तभी जाकर मॉडल को एक्यूरेट कहा जाता है। तो एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए हमारे पास 4 तरह के पैरामीटर्स होते हैं। वी हैव द वैल्यू चेक्स ऑफ कॉम्बिनेशंस व्हिच इज ऑफ रियलिटी एंड प्रिडिक्शन। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हम जो है मान के चलते हैं कि ये दोनों कब अग्री कर रहे हैं और दोनों कब अग्री नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस का जो एनालिसिस होता है उससे हमें पता लगता है कि मॉडल कितना एक्यूरेट है और कितना नहीं। जैसे कि रियलिटी कैन बी जज विद यस एंड नो एंड प्रिडिक्शन कैन बी जज विद यस एंड नो। अगर इन वैल्यूज का कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो वी कैन हैव आर वाई पी वाई, आर वाई पी एन। What does this mean? Reality, yes, and prediction, yes, the model is 100% accurate. Reality, yes, prediction, no, the model is not accurate. Right? Next, the reality says no, but the prediction says yes. Then it's not accurate. And the reality says no, and the prediction also says no, then it is accurate. द कंडीशन, और ये जो कंडीशन हम टेस्ट कर रहे हैं ये सारी, ये हमारा जो है टेस्टिंग स्टेज पे किया जाता है, जब हम मॉडल को एक्चुअली इवैल्यूएट कर रहे हैं तब हमारा मॉडल के बारे में हमें पता लगता है। नाउ कमिंग टू
how to identify the partiality, prejudice and preference. सो इसको समझने के लिए जो बायस है उनको 5 कैटेगरीज में डाल दिया इन्होंने: सिलेक्शन, लिनियरिटी, कंफर्मेशन बायस, रिकॉल एंड सर्वाइवर बायस। इन 5 कैटेगरीज में इनको डाला गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन बायस की। सिलेक्शन बायस क्या कहता है? This type of bias usually occurs when a model itself influences the creation of the data that is used to train it. सिलेक्शन यानी कि जो सैंपल डेटा हमने गैदर किया है मॉडल को ट्रेन करने के लिए, वो ट्रू फ्यूचर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। आपको याद होगा हमने चैप्टर 1 में सबसेटिंग पढ़ा है। व्हाट आर सबसेट्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबसेट कि हम पूरे डेटा से काम नहीं कर रहे, हमने पूरा डेटा में से कुछ सैंपल्स निकाले हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन, डिफरेंट कंडीशंस या जनरल कंडीशन पे हमने कुछ सैंपल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं ताकि हम जो है उनको समझ पाए कि किस तरह का डेटा हमारा आ रहा है। अब हमने क्या किया, ये जो सैंपल डेटा निकाला है इसको हमने ट्रेनिंग डेटा बना लिया और हमने इससे जो है मॉडल को टेस्ट करने के बारे में सोचा। हमने मॉडल को ट्रेन किया और हमने कहा कि इस सैंपल डेटा पे मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो पॉसिबली कल को आप इससे कुछ भी पूछोगे तो ये आपको डिजायर्ड आउटपुट दे देगा। तो इस केस में क्या हुआ, जो सिलेक्शन बायस है वो कैसे रिफ्लेक्ट हुआ कि जो हमने सैंपल डेटा हमें लगा था ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, या रैंडमली हमने जिस भी कंडीशन के बेसिस पे सैंपल डेटा निकाला, वो जो कंडीशन थी उसके सिलेक्शन में वी हैड अ प्रेफरेंस। और उससे क्या हुआ, जो हमारा जो फाइनली मॉडल जो प्रिडिक्शन उसको करना था वो इनकरेक्ट चला गया। क्यों? क्योंकि उसने जो सिलेक्शन किया उसने सारे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया, उसने कुछ फैक्टर्स को कंसिडर किया। ऐसा जो बायस है मोस्टली रिफ्लेक्ट होता है रिकमेंडेशन सिस्टम में, जैसे कि नेटफ्लिक्स पे, amazon प्राइम पे, यूट्यूब पे। अब सोचिए यूट्यूब पे रिकमेंडेशंस में किस लिए बोल रही हूँ। लेट्स से अगर यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हैं तो आपके फ्रेंड्स आपको आकर कहते हैं ओके यू गो एंड वॉच दिस वीडियो, ये वीडियो बहुत अच्छा है। तो उसने पूछा इस वीडियो में क्या अच्छा है, कहता तू जाके देख बहुत मजेदार है। तो आमूमन जो लोग वीडियोस देखते हैं, जैसे डांस वीडियोस हो गए, वो 2 तरह की वीडियोस देखते हैं। एक जिसमें डांस फॉर्म बहुत अच्छे से किया गया हो, कोरियोग्राफी बहुत ऑसम हो, या फिर ऐसे देखे जाते हैं जिनमें मज़ा है, किरकिरापन है, जिसमें बहुत चीप डांसिंग है या कुछ है, तो लोग इसको देखकर हँसते हैं। तो अब क्या होता है, रिकमेंडेशन सिस्टम किस पे वर्क करता है, उसको तो ये पता है ना कि भाई इस वीडियो को इतने व्यूज मिले, इतने लाइक मिले, तो वो क्या करता है उसको रिकमेंड कर देता है। अब उसको क्वालिटी ऑफ वीडियो से कोई लेना देना नहीं है रिकमेंडिंग सिस्टम को, उसको ये नहीं पता कि वीडियो का कंटेंट जो है वो कैसा है। तो यहाँ पर वो किस चीज पे सिलेक्शन कर रहा है, उसके व्यूज पे, उसके लाइक्स के बेसिस पे वो रिकमेंडेशंस को सेट कर रहा है। तो यहाँ पर एक तरह का बायसनेस है। पोल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे न्यूज़ चैनल्स वगैरह होते हैं तो ये लोग से पोल्स लेते हैं, डिफरेंट सर्वेज लेते रहते हैं और सर्वे पे ओपिनियन पूछते रहते हैं। दे आर वेरी लेस पीपल हु ओपिनिएट आंसर करेक्टली और द पॉपुलेशन यू आर कवरिंग, तो ये बहुत लेसर हो जाती है, तो हमारा जो सैंपल है वो बहुत लिमिट हो जाता है। सेम इज द केस फॉर पर्सनलाइज advertisement also. So this is because user response for the content that is displayed is collected. And what about the response which has not been collected and displayed is unknown? What about the average dance videos और individual dance videos? क्योंकि वो average है तो लोग उनको कम देख रहे हैं। लोग या तो बहुत अच्छे वाली देख रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे को भी किसी वीडियो पे किसी ऐप का अगर 1 बिलियन दिखेगा तो उसके फ्लॉज में नहीं पढ़ रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ उसके रिकमेंड के बेसिस पे उसको ले रही हूँ, विच इज नॉट सेटिस्फाइंग मी, और एज अ यूजर आई जस्ट डिलीट दिस ऐप आफ्टर इंस्टॉलिंग। सो दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंस when the trading of the data has not been done correctly। जो रिकमेंडेशन सिस्टम है उसने करेक्टली सारे तरह के डेटा को एनालाइज नहीं किया। पॉसिबली ऐसे केसेस तभी बनते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट बायस दैट इज लिनियरिटी बायस। अब लिनियरिटी का मतलब क्या है? देखो जैसे मैथ्स आप लोग करते हो, जैसे आप कहते हो x इज इक्वल टू वाई, आप पढ़ते हो इस तरह की सिचुएशन पढ़ते हो, या फिर आप कहते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, आपने ऐसे कहा, तो y की वैल्यू पॉसिबली क्या होगी, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो अगर x की वैल्यू चेंज हो रही है तो रिलेटिवली y की भी चेंज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो y है उसकी वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ x।
क्योंकि हमारे पास इक्वालिटी आ रही है, हमारी जो x की वैल्यू है, y की वैल्यू, ये आपस में जुड़े हुए हैं, where the value of y is dependent on the value of x। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए ये तरह का बायस आता है, वो कहता है कि अगर आपकी एक क्वांटिटी में चेंज हुआ है तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरे पे भी प्रोपोर्शनली आपको दिखना चाहिए। तो दिस इज प्रोड्यूस्ड नॉट थ्रू सम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस बट रादर थ्रू मिस्टेकनली वी परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस। किसी भी चीज का सेल हो गया, परचेज हो गया, वो किस बेसिस पे हो रहा है। तो वेरियस फैक्टर्स जो हम स्टडी करते हैं, जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम स्टडी करते हैं, वी हैव टू सी इफ वन इज चेंजिंग देन द प्रोपोर्शन शुड इक्वली रिफ्लेक्ट, द चेंज शुड रिफ्लेक्ट इन द अदर आल्सो। दिस कम्स द केस ऑफ linearity bias. Coming to confirmation bias. This is also known as observer bias. Confirmation bias is also known as observer bias. इस केस में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एक्सरे या फिर एमआरआई का रिपोर्ट है, उसमें 5 फैक्टर्स थे लेकिन 2 ही रिफ्लेक्ट हुए या 4 ही रिफ्लेक्ट हुए। तो ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा हुआ जैसे कि एक गिवन आपकी पिक्चर है, उसमें एक स्पॉट है। ये जो स्पॉट है, ये मुझे लगता है कि नहीं, ये आपकी बोन का कोई जॉइंट वाला हिस्सा है। दिस इज समथिंग अ जॉइंट इन योर बोन। तो मुझे ये ऐसा लगता है, तो रिपोर्ट में हमेशा जहां पर भी ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, मैंने उसको कहा नो दिस इज अ जॉइंट इन द बोन। ठीक है, दिस इज अ जॉइंट इन द बोन, मैंने हमेशा इसको जॉइंट कहा। तो ये मेरा थॉट है, ये मेरा सब्जेक्टिव थॉट है जो कि मैंने इस तरह की रिपोर्ट में दिया। तो इस तरह के जितने भी एमआरआई या एक्सरे होंगे, उसमें दिस काइंड ऑफ स्पॉट विल बी ट्रीटेड लाइक दिस ओनली। So that is my biasness or my thought which I have applied to this पर्टिकुलर थिंग। जहां पर मैं कह रही हूँ कि ये जो सब्जेक्टिव थॉट है, ये मेरा ये कह रहा है, इट मे बी आइदर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, कि ये चीज ये है। जैसे मेरा एक लीफ को देखने का तरीका हो गया, एक हेल्दी लीफ हो गया, ये हेल्दी सीड को देखने का तरीका मेरा जो है कि नहीं, ऐसी सीड दिखती है, ये हेल्दी है और ये अनहेल्दी है। तो मैंने उसको रेट जैसे किया, तो रियल टाइम में जब वो टेस्ट हुआ तो वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसी चीज आप उस तरीके से भी सोच सकते हो कि थ्रू आउट वर्ल्ड में जितना ब्लैक पीपल है, दे आर कंसिडर्ड पुअर। ठीक है, ब्लैक पीपल जो है, ऐसा माना जाता है कि ऐसे कहते हैं कि ब्लैक पीपल जो है पुअर है। तो हर एक स्किन टोन के लिए एक बायसनेस सेट हो गई है। ठीक है, एक सब्जेक्टिव थॉट मेरा कैसा लग गया कि ये जो पर्सन है, ये स्किन टोन ये है तो ये रिच है, और इसकी स्किन टोन ये है तो ये पुअर है। तो रिच और पुअर का जो ये मैंने थॉट दिया, इससे जो फाइनली मेरी बायसनेस है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो लेबल्स हैं सब्जेक्टिव के, ये थॉट कंट्रोल करते हैं मेरी लेबलिंग हैबिट को, और ये मेरा इनएक्यूरेट डेटा को रिजल्ट करता है। हर स्किन टोन डार्क वाला पुअर नहीं होगा, बट बिकॉज माई थॉट इज लाइक दिस, ऐसा होगा। सेल्फ ड्राइविंग कार जब इनिशियली लॉन्च हुई थी, तो उसने बुकिंग कोई ब्लैक पीपल भी कर रहा है, लेकिन वो स्टॉप सिर्फ वाइट के लिए होती थी, विच वॉज लेटरली करेक्टेड। सो दिस वॉज अ बायसनेस रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स कि ये ब्लैक पीपल के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं है, लेकिन white people के लिए। Maybe the concept of rich or poor applied there. So this is kind of observer bias. Let's come to recall bias. Now, recall bias is a type of measurement bias. It's common at data labeling stage of any project. This bias occurs when you label similar type of data inconsistently. आपकी मॉड्यूल में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। वो एग्जाम्पल क्या कहता है? आपके पास डैमेज लैपटॉप है जिनको आप 3 वे से वैल्यूज दे रहे हो। एक लेबल है द कंडीशन ऑफ लैपटॉप, उसको आप 3 ढंग से वैल्यू दे रहे हो, डैमेज, पार्शली डैमेज एंड अनडैमेज। Now, if someone in the team labels an image as damaged and some similar images as partially damaged, तो क्या आपका डेटा inconsistent नहीं हुआ? How things are coming? We have seen pictures of laptop. ठीक है, हमने लैपटॉप की पिक्चर देखी और